Hello everybody, welcome back to our class of learning mathematical concepts. So we are already familiar with the topic of minors and cofactors of a square matrix. So now we are going to start a very important topic of the matrix known by the name adjoint and then the inverse of a matrix. Although we have learned the inverse of matrix, but that we have done by the elementary transformation. Now, when we learn this concept adjoint of matrix, then we will be able to find the inverse of the square matrix by the adjoint of matrix also. And this one will be little bit easier than the elementary transformation. So let us now see what do we mean by adjoint of a matrix. So adjoint of matrix is obtained for the square matrix. So I am starting with the adjoint of a square matrix. Let us see what is square adjoint of a square matrix. So if A is a square matrix of order n, then the cofactor of this matrix A is obtained by the general element matrix showing the general element Cij. It will also be a square matrix of order n. Now here Cij is what? Cij is the cofactor of each element of this matrix A. Now we know how to find the cofactors. So every element of a square matrix will have its cofactors and minors and cofactors. So we will be able to find the cofactor of each element. So Cij is the cofactor of the element Aij. I have written also Cij is the cofactor of element Aij in the matrix A. Then what is adjoint? Then the adjoint of this matrix A is the transpose of the cofactor of A. See, cofactor of A will be finding of each element, then we will be writing it in the form of the matrix. So that will be the matrix of cofactor of A. In short, we write the cofactor of A as COF of A. Right, that we will be mentioning the short form of cofactor of A. Then adjoint of matrix A will be the transpose of this matrix A. In short, we write this short form of adjoint of matrix A as ADJ of A. So adjoint of a square matrix A is the transpose of the cofactor of A, and we know how to find the cofactor of each element of the matrix. Fine. Okay, now we'll take one example. Then it is find the adjoint of a matrix A if the matrix A is given as shown here -2 3 -4 -5 and 4 element. That means 2 by 2 matrix is given. Now we know that adjoint of A is obtained by the transpose of cofactor of A. So I have written here also adjoint of A is cofactor of A transpose. Cofactor of A कैसे निकालेंगे? We have to find the cofactor of all the 4 elements. So C11, C12, C21, C22, and then we have to find the transpose. ठीक है, फिर ट्रांसपोज निकालना है. अब C11 अब मैंने आपको बताया था कि ये देखो ये इवन पोजीशन 1+1 इवन पोजीशन है, ये ऑड पोजीशन है 1+2, ये भी ऑड पोजीशन है, ये इवन पोजीशन है. तो मैंने क्या बताया था कि आपको अगर भूल गए हो तो बता देता हूँ मैं, ये कोफैक्टर कैसे निकालते हैं. अगर मान लो आपको इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है तो यू हैव टू delete this particular row and column and then find the determinant of the remaining element. तो remaining element will be single element, और single element का determinant वो element खुद ही होता है. बस खाली हमें क्या देखना है, अगर इवन प्लेस पे है तो हमको जो भी एलिमेंट बचा वैसा का वैसा लेना है, अगर ऑड प्लेस पर है तो उस एलिमेंट का साइन भी बदलना है. तो अभी ये क्या हो जाएगा C11, अगर आप देखोगे तो ये एलिमेंट रो और कॉलम डिलीट कर दिया तो 4 बचा, और ये 4 का डिटर्मिनेंट 4 ही होगा क्योंकि ये इवन प्लेस पे है, इसलिए हमको साइन चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है. क्लियर है. इसी तरह C12 यानी इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है तो रो एंड कॉलम डिलीट किया तो -5 बचा, लेकिन ये C12 ऑड पोजीशन पे है. ऑड पोजीशन में क्यों? क्योंकि 1+2 3 होता है, वो ऑड है, इसलिए इसको ऑड पोजीशन बोलते हैं. तो हमें क्या करना है, जो -5 आ रहा था उसका साइन बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, +5 बच जाएगा. इसी तरह C21 क्या हो जाएगा, ये रो कॉलम डिलीट किया तो 3 बचा, ऑड पोजीशन पे है तो -3 बन जाएगा, और C22 में ये रो कॉलम डिलीट करने पे -2 बचा.
और फिर मुझे इसका ट्रांसपोज लेना है। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए विल बी, इसका ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज करना आपको मालूम है, रो को कॉलम बना दिया, तो 4 and 5 इधर आ गया और -3 and -2, तो इस तरह अपने पास एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या रहा है, 4, फिर -3, 5 और -2। तो ये बिल्कुल आसान है, 2/2 का एडजॉइंट निकालना तो बहुत ही आसान है। और मैं आपको एक ट्रिक भी बता देता हूँ जिसमें आपको इतना भी कुछ नहीं करना है, 2/2 में तो एक ट्रिक भी काम करती है। वो ट्रिक क्या है, पहले मैं आपको बता देता हूँ। वो ट्रिक ये है कि जैसे ये 2/2 का मैट्रिक्स है, तो जब हम अगर इसका एडजॉइंट निकालेंगे तो आपको क्या करना है, ये जो मेन डायगोनल एलिमेंट है ना, ये -2 और 4, इसको क्या कर दो, इसको इंटरचेंज कर दो, -2 को 4 से और 4 को -2 से। देख लो यहाँ पे -2 की जगह 4 आ गया और 4 की जगह -2 आ गया। और फिर जो दूसरा जो डायगोनल एलिमेंट है, ये वाला जो मेन डायगोनल के अलावा, उसमें क्या करना है, खाली आपको साइन बदलना है, मतलब वो एलिमेंट नहीं बदलना, खाली साइन बदलना है। तो क्या हो जाएगा, अभी देखो पहले 3 था प्लस का, तो मैंने -3 कर दिया, और फिर दूसरा जो एलिमेंट है वो -5 है, तो उसको +5 कर दिया। बात क्लियर हो गई। तो क्या करना है, मेन डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर देना और दूसरा जो डायगोनल एलिमेंट है उसके खाली साइन बदल देना है, तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। लेकिन ये ट्रिक खाली 2/2 मैट्रिक्स में ही एप्लीकेबल है, 3/3 में हमें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, वो इतनी आसानी से नहीं निकलता है। बात समझ में आ गई आपको। सपोज अगर मैं आपको कोई दूसरा क्वेश्चन दूं कि फाइंड adjoint of B if B is 7 1 -3 और सपोज 2 है, तो अगर हम डायरेक्टली इस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए डी जे, एडजॉइंट ऑफ ए विल बी क्या हो जाएगा, क्या बताया था मैंने आपको कि डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर देना है, तो ये 2 7 की जगह चला जाएगा और यहाँ पे 7 आ जाएगा, और इस वाले में खाली साइन बदलना है, तो ये -1 बन जाएगा और ये +3 बन जाएगा, और इस तरह हमारे पास एडजॉइंट आ जाएगा। इतना सिंपल है, ठीक है। तो थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करोगे तो फिर 2/2 का एडजॉइंट निकालना तो बिल्कुल आसान है, ठीक है। तीसरा एग्जांपल लिया मैंने, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, और दिस टाइम आई हैव टेकन द मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है। 2/2 का मैंने बता ही दिया, वो तो बहुत आसान है। अब इस 3/3 मैट्रिक्स का आपको एडजॉइंट निकालना है, तो सबसे पहले हमें कोफैक्टर तो निकालने ही, सारे एलिमेंट का निकालना है। तो पहले मैं आपको एक एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना सिखाता हूँ। तो सबसे पहले C11 यानी कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट लाइंग इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये इवन पोजीशन में है, तो मुझे इसका साइन प्लस में है, और डिटर्मिनेंट आफ्टर डिलीटिंग दिस पर्टिकुलर रो एंड कॉलम, तो क्या बचेगा 1 -3 2 and 3। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में ये 3 और माइनस और माइनस प्लस 3 2 जा 6, तो आपका आंसर हो जाएगा 9, ठीक है। इसी तरह C12 यानी ये, तो ये ऑड पोजीशन में है, तो ये माइनस, अब ये पर्टिकुलर रो एंड कॉलम डिलीट हो जाएगा। तो अब मैं सीधे आपको बता रहा हूँ कैसे डिलीट, ये पर्टिकुलर रो कॉलम आप मन में डिलीट करो, आपका जो रिमेनिंग एलिमेंट है उसका डिटर्मिनेंट, तो 2 × 3 6, और ये मल्टीप्लिकेशन प्लस में आ रहा है तो साइन बदल जाएगा -3, तो 6 - 3 इज 3, और माइनस बाहर लगा हुआ है इसलिए -3 आएगा। C12 हो गया। C13 कितना हो जाएगा, पर्टिकुलर ये प्लस में आएगा, और हमारे पास ये रो कॉलम डिलीट हो जाएगा, तो 4 माइनस और -1 +1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5। समझ में आ गया। फिर ये C21 कितना हो जाएगा, देखिए आप 21 मतलब ये वाला, तो ये पर्टिकुलर रो कॉलम डिलीट हो गया और पोजीशन में ये पर्टिकुलर रो कॉलम, तो ये 3 और 2 × 1 तो -2, ये बच गया -1। समझ में आ रहा है आपको। C22 इवन प्लेस प्लस में पर्टिकुलर रो कॉलम डिलीट किया, 1 × 3 3, माइनस और माइनस +1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 4। C23 कितना हो जाएगा, ऑड पोजीशन माइनस, पर्टिकुलर रो कॉलम डिलीट, 1 × 2 2, और माइनस ऑफ माइनस +1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब थर्ड रो के कोफैक्टर निकालेंगे, तो C31 इवन पोजीशन में प्लस, पर्टिकुलर रो कॉलम डिलीट किया, तो 1 × -3 -3,
और -1, तो ये हो गया -4, राइट। C3 2 जो निकालेंगे आउट पोजीशन माइनस पर्टिकुलर रो कॉलम डिलीट करने के बाद -3 ये और ये -2 तो -5 होता है, लेकिन ये +5 बन जाएगा क्योंकि माइनस आउटसाइड है। और C3 क्या बन जाएगा इसी तरह, ये पर्टिकुलर रो कॉलम डिलीट करने के बाद प्लस में आ रहा है और ये 1 -2 विच इज इक्वल टू -1। तो ये हमारे पास सारे कोफैक्टर्स इस तरह फाइंड हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, सारे कोफैक्टर जब फाइंड हो जाएंगे तो फिर हमें एडजॉइंट पता करना है। तो एडजॉइंट ऑफ जो ए होगा वो कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज करना है। तो सबसे पहले हमने कोफैक्टर ऑफ ए के सारे एलिमेंट को अरेंज कर देते हैं। अपने पास यहाँ निकले हुए हैं, तो यहाँ पे हमने ये ऐसे करके इसका फिर ट्रांसपोज देंगे। अब C3 1 वाले तो सब लिखे हुए, पहले मैं लिख देता हूँ। ये -4 5 और ये -1 तो है ही है अपने पास। अब ये अपन ने जो पहले निकाले थे, ये मेरे पास ये देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं, C11 वाले हैं 9, फिर ये था 12 वाला -3, 13 वाला 5 और फिर 21 वाला -1 4 और ये -3 का ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसफर करने के बाद क्या आएगा, ये अपने पास आ जाएगा 9 -3 5, ये जो रो है वो कॉलम बना दिया, और ये वाला सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया, -1 4 -3 और -4 5 -1। तो दिस विल बी द रिक्वायर्ड एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये 3/3 का एडजॉइंट निकालना थोड़ा सा टाइम लगता है, पर कैलकुलेशन फास्ट होगी तो आप थोड़ा जल्दी कर पाएंगे, सब ओरली कर पाएंगे और डायरेक्टली आप इसमें मैट्रिक्स में आप एंट्री कर पाएंगे आप। Okay, now we'll see that inverse of a matrix. So inverse of matrix we have already learned when we were finding the transformation of matrices. So we have learned to find the inverse of matrix by elementary transformation, and we have seen that the inverse of a matrix is exist only for the square matrix. Suppose we have a square matrix of order n is invertible if there exists another square matrix B of the same order such that A into B is equal to identity matrix of order n is equal to B into A. That this thing has already been explained to you when we were finding the inverse of square matrix by elementary transformation. So just recalling of this fact. So in this case जो B होता है तो B will be A inverse, or we can say that A inverse is equal to B, right? And now every invertible matrix has a unique inverse. कैसे होता है, we can prove also कि अपन मान लेते हैं that A be an invertible, अपन प्रूव करके देखते हैं। let A be an invertible matrix and let इसके एक इनवर्स, तो मैं हम बोल रहे कि इसका एक ही इनवर्स होता है, तो हम मान लेते हैं सपोज कि दो इनवर्स है। let B and C be two inverses of A. So therefore A into B will be equal to B into A will be equal to identity matrix of order n, right? And ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। and also A into C, क्योंकि C भी इसका इन्वर्स है, तो A into C should be equal to C into A should be identity matrix of the same order n। ये आ गया अपने पास सेकंड, ठीक है यहाँ तक। अब क्या है, now A into B is identity matrix of order n, ठीक है, क्योंकि ये हमने पढ़ी थी कि A into B is identity matrix of order n। अब क्या होगा, अगर दोनों तरफ मैं C से मल्टीप्लाई कर दूं तो C टाइम्स A इंटू बी इज इक्वल टू C टाइम्स I n। क्या किया मैंने, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई C। तो ये क्या हो जाएगा, अब एसोसिएटिव लॉ के हिसाब से इसको मैं C इंटू ए भी लिख सकता हूँ, C इंटू ए टाइम्स बी और
ये क्या हो जाएगा, C इंटू आई एन जो है, तो ये तो क्या हो जाएगा, ये वैसा का वैसे रहेगा, C इंटू आई एन। अब ये जो है C इंटू ए, यहाँ देख सकते हो किसके बराबर है, आई एन के बराबर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू बी इज इक्वल टू C इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये वही मैट्रिक्स रहेगा बी। इधर भी C इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स विल बिकम C, तो B एंड C विल बिकम इक्वल। तो देयरफॉर there exists only a unique inverse, therefore A has unique inverse। तो हमने याद क्या किया था, हमने BOC दो इनवर्स मान लिए थे। अब BOC को फिर हमने इसके कंसेप्ट को लगाया आगे और हमने यहाँ पे शो कर दिया कि BOC दोनों एक ही मैट्रिक्स होंगे। अब हम ये भी जानते हैं कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं होता है, तो किस स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स होता है, तो हम ये पता होना चाहिए कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल इफ इट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर अपने पढ़ा था। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जीरो होता है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। अब यहाँ पे अगर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कब होगा, जब वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, इसका मतलब उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए। कैसे करेंगे, चलो ये भी, इसको भी प्रूव करा के देखते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल इफ इट इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो लेट अपन मान लेते हैं, let A be an invertible matrix, ठीक है, and let there exist, let its inverse be B, so therefore A into B should be an identity मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर n, क्योंकि अगर ए एन ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n है तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी उसी ऑर्डर का होगा। तो अब अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करूँ, a इंटू बी का होल डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू बी प्रॉपर्टी के हिसाब से डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ दोनों का अलग अलग डिटर्मिनेंट हो जाएगा। एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा वन होता है, ये तो आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि अगर ये कोई भी चीज़ जहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, अगर ए इंटू बी है तो ये वन आ रहा है, ये वन आ रहा है, इसका मतलब ये जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो होता तो जीरो, इसका डिटर्मिनेंट जीरो, अगर किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करते तो जीरो बन जाता। इसलिए ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो ए जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, देयरफॉर ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी अगर आपको मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है तो सबसे पहले हम यही चेक करेंगे उसका डिटर्मिनेंट जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है, यानी सिंगुलर है कि नहीं है। अगर वो नॉन सिंगुलर है तभी इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। नाउ द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द ए इन्वर्स फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, इट्स इन्वर्स इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यानी सबसे पहले हम तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, चेक करेंगे कि सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। अगर नॉन सिंगुलर हुआ तभी ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे और फिर उस एडजॉइंट ऑफ ए को उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड करने पे जो भी मैट्रिक्स बनेगा दैट विल बी द रिक्वायर्ड ए इन्वर्स। तो ये ए इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला हो गया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, अब वी विल बी फाइंडिंग सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स मैट्रिक्स। तो सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स या प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिसेस क्या है, इसके अंदर सबसे पहला आएगा कैंसलेशन लॉ। कैंसलेशन लॉ में क्या है, लेट ए बी एंड सी बी द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n
and if A is a non-singular matrix, then if AB is equal to AC, then this implies B is equal to C. इसका मतलब हमने A दोनों तरफ से कैंसिल कर दिया, और कैंसिलेशन के लिए A शुड बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कैसे हम कैंसिलेशन, मतलब हम दोनों तरफ A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और A इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो A इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब वो A नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। तो इसलिए लेफ्ट से, इसका मतलब लेफ्ट से कैंसिल हो गया, तो इसलिए इसको B इज इक्वल टू C आ गया, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ बोलेंगे। सिमिलरली अगर बी ए इज इक्वल टू सी ए हो तो राइट से ए कैंसिल हो जाएगा, तो बी इज इक्वल टू सी, एंड दिस इज नोन एट राइट कैंसिलेशन लॉ। देन सेकेंड लॉ इज रिवर्सल लॉ। रिवर्सल लॉ में क्या है, इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, देन ए बी इज ऑल्सो इन्वर्टिबल, यानी उनका प्रोडक्ट भी इन्वर्टिबल है। और उस केस के अंदर ए इंटू बी का होल इनवर्स इज सेम है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो आपने देखा कि जब ये होल इनवर्स में अपन जब इंडिविजुअल मल्टीप्लाई किया तो ऑर्डर चेंज हो गया, बी इनवर्स पहले हो गया इंटू ए इनवर्स, इसलिए इसको रिवर्सल लॉ भी बोलते हैं। रिवर्सल लॉ आपने पहले भी पढ़ी हुई है, अगर आपको मालूम है, जो अपन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकाल लेते हैं तो उसमें ही पढ़ा था, तो ये आपको दिया, तो इसमें इसको बोलेंगे रिवर्सल लॉ ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स। Okay, now the third property is inverse of an inversible symmetric matrix is also symmetric, यानी कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n-1 वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए। ये वाली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको बेस क्वेश्चन 1 मार्क्स का मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको ये वाली प्रॉपर्टी। फिर फिफ्थ प्रॉपर्टी, इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, देन द एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इसके अंदर भी क्या, पहले ए इंटू बी का मल्टीप्लीकेशन कर लिया, फिर एडजॉइंट निकाल लिया, या फिर एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, या तो दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। पर यहाँ भी ध्यान रखना कि ऑर्डर चेंज हो गया, बी का एडजॉइंट पहले निकालना है और फिर इंटू ए का एडजॉइंट। लास्ट में इफ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, देन एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज सेम एज एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज। या फिर एक और भी चीज में, एंड एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज पावर n-2 इंटू ए। ये ध्यान रखना आपको, वेयर n इज आपको पता है कि ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इस तरह अपने पास ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसमें सारी प्रॉपर्टी इतना ज़्यादा काम नहीं आएगी, तो ये वाली प्रॉपर्टी जो फोर्थ वाली सबसे ज़्यादा इसके वो बेस क्वेश्चन आता है। बाकी ये है प्रॉपर्टी, ये सब इतनी ज़्यादा काम में नहीं आती अपने CBSE के इसमें, पर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जब देते हैं तब ऐसी प्रॉपर्टी का भी यूज़ होता है। तो ये सब अपना आज का ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, तो विल सी नेक्स्ट टाइम।